हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएसटी में स्लीपर्स और स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। By the early 19th century, oak forests in England were disappearing. This created a problem of timber supply for the Royal Navy. How could English ships be built without a regular supply of strong and durable timber? How could imperial power be protected and maintained without ships? By the 1820s, search parties were sent to explore the forest resources of India. Within a decade, trees were being felled on a massive scale, and vast quantities of timber were being exported from India. The spread of railways uh, uh, from 1815s created a new demand. Railways were essential for colonial trade and for the movement of imperial troops. To run locomotives, wood as needed as fuel, uh, and to lay railway line sleepers were essential to hold the track together. Each mile of railway track required between 1,760 and 2,000 sleepers. From the 1860s, the railway network expanded rapidly. By 1890, about 25,500 kilometers of track had been laid. In 1946, the length of the track had increased to over 7,65,000 kilometers as the railway tracks spread through India. A large number of trees were felled as early as 1850. In the Madras Presidency alone, 35,000 trees were being cut annually for sleepers. The government gave our contract to individuals to supply the required quantities. These contractors began cutting trees discriminately. Forest around the railway track fast started disappearing. देखिए, अब जो इसमें ये स्लीपर्स आए हैं, ये स्लीपर्स वो वाले स्लीपर्स नहीं है जो ट्रेन में स्लीपर्स कोच होती हैं। ये यहाँ पर जो स्लीपर्स की बात हो रही है, जैसे कि अब हम जानते हैं जो हमारी पटरी होती हैं, पटरी के नीचे पहले तो गिट्टी होती हैं और गिट्टियों पे सीमेंट के वो जो आपके पट्टे होते हैं, ये वो वाले स्लीपर्स हैं। अब सीमेंट के जो स्लीपर्स आने लग गई हैं, पर पहले जब ब्रिटिश रूल था या ब्रिटिश रूल ने जब भारत में या भारत में जब उसने रेलवे लाइंस चालू की, तो उसने लकड़ी के स्लीपर्स मीन्स लकड़ी के पट्टे, जैसे कि ये डायग्राम में दिखा रहे हैं, हाथी जो है इन लकड़ियों को ले जा रहा है। अभी इतनी बड़ी लकड़ी है, इसमें से 2 या 3 पीस होंगे। उसके बाद जो पटरी होगी, उस जगह पर ब्रिटिश साम्राज्य आपके पट्टे लगाएगा। देखिए, जैसे कि ये हाथी के पैर के पास जो ये वाला जो पट्टा है, इस साइज में। अब जैसे ही पटरी इक्वल डिस्टेंस में होगी, तो आपके ये पट्टा जो है आपके बिछा दिया जाएगा। फिर अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है Source B. The new line to be constructed was the Indus Valley Railway between Multan and Sukur, a distance of nearly 300 miles at the rate of 2,000 sleepers per mile. This would require 6 lakh sleepers, 10 feet by 10 inches by 5 inches or 3.5 cubic feet. A piece being a var of 220 lakh cubic feet. The locomotives would use wood fuel
at the rate of the train daily either way and at 1 mond per train mile, an annual supply of 2,19,000 monds would be demanded. In addition, a large supply of fuel for brick burning would be required. The sleepers would have to come mainly from the Sindh forests and the fuel from the Tamarisk and Jhand forests of Sindh and the Punjab. The other new lines was the Northern State Railways from Lahore to and Multan. It was estimated that 222 lakh sleepers would be required for its construction. पटरी पर स्लीपर्स 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे, और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाए रखी जा सकती है। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर खड़े काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी की हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी थी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थीं। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर रेल लाइनों अनिवार्य थीं। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन में लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थीं। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलो माइल तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रयास के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपर के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। मुल्तान और सुकूर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन बनाई जानी थी। 2000 स्लीपर्स प्रति मील के दर से। इसके लिए 10 फुट गुना 10 इंच इंटू 5 इंच या 3.5 घन फुट प्रति इकाई के 6 लाख स्लीपर की जरूरत होगी, या कि 20 लाख क्यूबिक फुट से ऊपर लकड़ी की। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन एक ट्रेन व एक मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की जरूरत होगी। इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होगी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगल से आया करेंगे। वह ईंधन सिंध और पंजाब के जाहू और झांड के जंगल से लाया जाना था। दूसरी नई लाइन नॉर्थर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक की थी। आंकड़ों के हिसाब से
इसके निर्माण के लिए 22 लाख स्लीपर की जरूरत होगी। अब जो है अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांटेशन। लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर टू मेक वे फॉर टी, कॉफी and rubber plantation to meet Europe's growing need for this commodities. The colonial government took over the forests and gave vast areas to European planters at cheap rates. These areas were enclosed and clear of forest and planted with tea or coffee. बागान यूरोप में चाय, कॉफी और रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी एक वनों का एक बाहरी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत ही सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों को बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफी की खेती की जाने लगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। इन the previous section, we have seen that the British needed forest in order to build ships and railways. The British were worried that the use of forest by local people and the reckless felling of trees by traders would destroy forests. So they decided to invite a German expert, Dietrich Brandes, for advice and made him the first Inspector General of Forest in India. Brandeis realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conversion. This system would need legal sanction. Rules about the use of forest resources had to be framed. Felling of tree and grazing had to be restricted so that forest could be preserved for timber production. Anybody who cut trees without following the system had to be punished. So Brandy set up Indian Forest Services in 1864 and helped formulate the Indian Forest Act of 1865. The Imperial Forest Research Institute was set up at Dehradun in 1906. The system they thought there was called scientific forestry. Many people now, including ecologists, feel that the system is not scientific at all. In scientific forestry, natural forests which had lost of different types of trees were cut down. In their place, one type of tree was planted in straight rows. This is called a plantation. Forest officials surveyed the forests, estimated the area under different types of trees, and made working plans for forest management. They planned how much of the plantation area to cut every year. The area cut was then to be replanted so that it was ready to be cut again in some years. After the Forest Act was uh, enacted in 1865, it was amended twice, once in 1878 and then in 1827. The 1878 Act divided forests into three categories: reserve, protected, and village forest. The best forests were called reserve forest,
Villagers could not take anything from this forest even for their own house, for house building or fuel. They could take wood from protected for village forest. How were the lives of नहीं व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डायट्री बेंड्रिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उस देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। ब्रैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विकास प्रति शिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। इस तरह ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया, लेकिन आज परिस्थिति की विशेषज्ञों साहित्य ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई ही वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने की, ताकि कुछ ही वर्ष में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गाँव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वह घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। How were the lives of people affected? Foresters and villagers had very different ideas of what a good forest should look like. Villagers wanted forests with a mixture of species to satisfy different needs: fuel, fodder, leaves. The forest department, on the other hand, wanted trees which are suitable for building ships or railways. They needed trees that could provide hardwood and were tall and straight, so particular species like tea and sal were promoted and other were cut. एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे ईंधन,
चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी के मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हों। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गईं।